So welcome to the session on memory management. Now suppose for example, the problem is given to you like this one. Suppose that the value of relocation register is given as 1000 and the limit register is 7000. Then what is the physical address of a logical address 500? Now what is given to you? Logical address is given to you. The limit is given to you, means it should not exceed the 7000. And you're starting the address in the memory is given to you. Means here I say that from this memory unit, जो भी आपका memory है, वो memory का 1000 लोकेशन से आगे 7000 लोकेशन तक, 1000 से 7000 लोकेशन बोल तो कितना हो गया मैक्सिमम आपके एड्रेस होंगे. That addresses will be mapped from 1000 to 8000 or that will map to the 79991. Okay. So that is the address space, physical address space that is allocated for your process. Now your process says that its logical address is 500. So this 500 address will map to the which of this location. So first we want to check that whether whatever the address which is generated will be the correct or not. So for that one, what we should check, whether we should check that it should be a greater than 1000. Not necessary, because we may have the logical addresses that is starting from 0 to some value, whereas your physical addresses start from the 1001. So as per that notation, we say that the 0 is mapped to the 1001. आपका 0 जो होगा वो किसको मैप हो रहा है? 1000 मैप हो रहा है. 1 जो मैप हो रहा है वो किसको मैप हो रहा है? 1001 को मैप हो रहा है. 100 जो मैप होगा वो किसको मैप होगा? 1100 को मैप होगा. अनलाइक दिस वन. बट ये जो है, ये जो हमने मैपिंग निकाला है, ये मैपिंग हमने हमारा इंट्यूशन से निकाला है या फिर हमारे कॉमन सेंस से निकाला गया है. Now here when we are giving for the operating system we require there should be some mechanism. तो मुझे पहले क्या चेक करना पड़ेगा? उसका लिमिट कितना है, मैक्सिमम कितना जा सकता है? वो 7000. So whether it should be less than 7000 or not. Okay, so for that ones what we required the support for relocation and limit register. तो पहले मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? सीपीयू ने कौन सा एड्रेस दिया है? लॉजिकल एड्रेस. सीपीयू ने लॉजिकल एड्रेस दिया है 500. Whether this 500 is less than limit address. लिमिट एड्रेस का वैल्यू कितना मिला मुझे? लिमिट एड्रेस का वैल्यू मिला मुझे 7000. Whether this 500 is less than 7000, yes, it is less than 7000. Elsewhere, it will generate a tap addressing here, and your process is going to be terminated. So it is less than the limit register. Now, next thing is that we want to add this logical address to the relocation register. Relocation register आपको कौन सा एड्रेस दे रहा है? relocation register में क्या है? तो relocation register में है 1000. तो आपका फिजिकल एड्रेस क्या मिल गया है? आपका फिजिकल एड्रेस मिल गया है 1500. So the logical address 500 is going to map to the physical address 1500. Okay, previously we have seen a single partition, and as well as for a single partition of your memory, means what we have seen previously, that whatever the memory unit is there, or RAM is there, it is divided into only two portion. One portion is OS and other portion is user process. We have seen that advantage is simplest one. But what is going to happen with the help of this one? We have the less utilization of a CPU. We have the less utilizations of the memory one. Okay, that's why what we require that the multiple partitions should be there. So for a multiple partitions, we have the two mechanisms are there. One is the fixed partition method, allocating the memory. Now these both are for what? These both are for contiguous one. This both mechanism is for what? This both mechanism is for the contiguous memory allocation. So as the name suggesting, for the fixed partition. So for a fixed partition, what we have for fixed partition? जैसे यहाँ पे आपके दो partition थे.
तो यहाँ पे फिक्स पार्टीशन में क्या होगा, तो फिक्स पार्टीशन में आपके पास ये मेमोरी। ओके, अभी ये मेमोरी में से क्या होगा, एक पार्टीशन तो मुझे पता है ओएस के लिए है। ओके, अभी बाकी के जो मेरे पार्टीशंस है वो पार्टीशन मेरे फिक्स साइज के होंगे। अभी ये फिक्स साइज में भी ऐसे भी हो सकता है। हाँ, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस पोर्शन इज फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे आपका क्या होगा, ये आपका प्रोसेस P1 होगा, ये आपका प्रोसेस जो है यहाँ पे आपका प्रोसेस P2 होगा, एंड डॉट डॉट डॉट, बराबर है। यहाँ पे आपका प्रोसेस P3 होगा, यहाँ पे आपका प्रोसेस P4 होगा। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि एट अ टाइम कितने प्रोसेस आपके मेमोरी में रह सकते हैं, 4 मेमोरी में रह सकता है। हाँ, सो इन फिक्स पार्टीशन क्या हो रहा है, मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू द सेवरल फिक्स साइज पार्टीशन। यहाँ पे आपका मेमोरी कितने फिक्स साइज पार्टीशन में डिवाइड हुआ है, 4 फिक्स साइज पार्टीशन। अभी ये फिक्स साइज पार्टीशन बोले तो क्या हो जाएगा, ईच partition is of size, for example 512K, 512 KB डिपेंड्स रहेगा ये आपका। हाँ, ये 512 KB होगा या फिर 1 MB होगा या फिर 1024 KB होगा, वॉट एवर इट मे बी, और 1024 बाइट होगा, डिपेंड्स। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फिक्स है। अभी ये फिक्स साइज में भी ऐसे हो सकता है मेरे पास, ये फिक्स साइज पार्टीशन जो है, दिस फिक्स साइज पार्टीशन इज अगेन डिवाइड इनटू टू, वन all partition is of a same size। सभी के सभी पार्टीशन मेरे कैसे होंगे, सेम साइज के होंगे, या फिर is of डिफरेंट साइज। मेरे पास दो मैकेनिज्म रहेंगे। एक मैकेनिज्म में क्या हो जाएगा, सभी के सभी पार्टीशन कैसे रहेंगे, फिक्स साइज के रहेंगे, यानी हर एक का अगर यहाँ पे मेरे 4 पार्टीशन है तो 4 पार्टीशन मेरे क्या हो गए, फिक्स पार्टीशन हो गए। या फिर वेरिएबल में क्या हो जाएंगे, यानी वेरिएबल में हो सकता है अभी मैं यहाँ पे सेकंड का लिख रहा हूँ, वेरिएबल में हो सकता है पहला वाला पार्टीशन जो है इज ऑफ 128K, दूसरा वाला पार्टीशन जो है is 256K, नॉट ऑफ इक्वल साइज। थर्ड पार्टीशन जो है is 512K। ओके, मेरे पास उतना ही मेमोरी है। हाँ, मेरे पास मेमोरी जो है उतनी है। क्या हो सकता है मेरे पास, फर्स्ट पार्टीशन जो होगा 128K का, 128K के कितने पार्टीशन मेरे पास, फर्स्ट पार्टीशन is of 128K and there are two partitions of 128K। कितने पार्टीशन है, देर आर कितने पार्टीशन है, 2 पार्टीशन है। अभी मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन 4 हो गए मगर टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन 4 में क्या हो गए हैं, दो पार्टीशन 128K के हैं, एक पार्टीशन 256K का है, तीसरा वाला पार्टीशन मेरा, चौथा वाला पार्टीशन जो है मेरा 512K का है। तो अगर मैंने पहला वाला फिक्स पार्टीशन में कौन सा लिया है, अगर फिक्स पार्टीशन में मैंने ऑल पार्टीशन इज ऑफ इक्वल साइज का अगर लिया तो मेरी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या हो जाएंगे, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टीशन। हाँ, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या हो जाएंगे, इन फिक्स पार्टीशन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टीशन। जितने पार्टीशन हैं उतने ही प्रोसेसेस मेरे मेमोरी में रहेंगे। क्या, ओके, उतने ही प्रोसेसेस क्या रहेंगे मेरे मेमोरी में रहेंगे। तो आइदर दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ वन, ये जो बात है ये आपके दोनों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। दोनों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी बोले तो कौन सी इसके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे, दिस इज एप्लीकेबल टू all partition of a same size as well as the all partition of a different size।
We are not talking about the right now variable partition. We are talking only about the fixed partition. So what is going to be happen in fixed partition? Fixed partition में क्या हो जाएगा? आपका मेमोरी जो है several fixed size partition में डिवाइड होगा. ये कब होगा? जब आपका स्टार्टिंग हो जाएगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसी टाइम पे बार बार नहीं चेंज होगा. ये जो है बार बार चेंज होगा क्या? बार बार चेंज नहीं होगा. हाँ, तो एक ही टाइम पे सब रहेगा. अगर मेरे एक ही टाइम पे 4 पार्टीशन है तो 4 ही रहे. 4 का अगर साइज हर एक पार्टीशन का 512 के बी तो 512 के बी रहेगा, स्टैटिक रहेगा, ये बदलेगा नहीं है. तो ये इन फिक्स पार्टीशन आइदर इट इज ऑफ द ऑल पार्टीशन इज ऑफ द सेम साइज और द पार्टीशन इज ऑफ अ डिफरेंट साइज. हाँ, तो मेरा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टीशन. ओके, लेट अस से फॉर द फिक्स पार्टीशन दो जो हमने मैकेनिज्म लर्न किए थे. तो यहाँ पे आपको क्या है? द पार्टीशंस ऑफ मेन मेमोरी इनटू अ सेट ऑफ नॉन ओवरलैपिंग. उसमें ओवरलैपिंग कुछ नहीं होगा, रीजन कॉल्ड एज द पार्टीशन. और आपके पार्टीशन क्या हो जाएंगे? इक्वल साइज के रहेंगे या फिर अनइक्वल साइज के रहेंगे. तो यहाँ पे आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कितना दिया हुआ है? 8M दोनों इसमें. तो यहाँ पे मेरे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम मेरा क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 यानी मैक्सिमम 7 प्रोग्राम एट अ टाइम मेरे पास रह सकता है. हाँ, यहाँ पे मैंने एज्यूम क्या किया है? ऑल द प्रोसेसेस मे बी ऑफ अ सेम साइज. बट अगर रियलिटी का सिचुएशन देखा जाए तो ऑल द प्रोसेसेस इज ऑफ सेम साइज? नो. सम प्रोसेसेस may require more memory, some processes may requires a less memory. That's why यहाँ पे अगर आपने देखा जाए तो एक पार्टीशन मेरा 2 MB का है, दूसरा 4 का है, 6 का है, 8 के 2 है. जैसे मैंने अभी 128 के 1 के 2 बताए थे, 12 का 1 है, 16 का 8 है. तो यहाँ पे कितने पार्टीशन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 पार्टीशन. दोनों इसमें 7 पार्टीशन है, मगर एक में क्या है? फिक्स साइज है, दूसरे में क्या है कि वेरिएबल साइज है. ओके, तो अभी अगर मेरे पास ऐसे है तो आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम. क्या प्रॉब्लम मैं फेस कर सकता हूँ? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फर्स्ट इसमें कैन यू एबल टू एग्जीक्यूट अ प्रोसेस हुज साइज इज 9M. पहले इसमें देखा जाए तो हम 9M का प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्या? तो हम 9M वाला 9 मेगाबाइट साइज वाला प्रोसेस फर्स्ट इक्वल साइज पार्टीशन में नहीं कर सकते हैं. क्योंकि क्या होगा कि मैक्सिमम कितना दिया हुआ है साइज? मैक्सिमम 8M दिया है. मैक्सिमम कितना दिया हुआ है? 8M दिया है. वो उसका डिसएडवांटेज हो गया. यहाँ पे आप कर सकते हैं क्या? यस, यहाँ पे आप कर सकते हो. आप 9M वाला जो है 9M वाला प्रोसेस या आप यहाँ पे भी लोड कर सकते हो या फिर यहाँ पे भी. ओके, अगर मैंने 9M वाला प्रोसेस यहाँ पे लोड किया तो यहाँ पे कितना फ्री फ्री रहेगा इसमें से? अगर मैंने मुझे देखा जाए तो यहाँ से मैं जो है 3 कितना रहेगा? यहाँ पे 3M फ्री रहेगा, दैट आई कैन नॉट यूज. यहाँ पे कितना फ्री रहेगा? 7M इज फ्री रहेगा. वो कोई भी यूज नहीं कर सकता है. हाँ, कोई भी यूज नहीं कर सकता है. वॉट एवर द फ्री स्पेस जो पार्टीशन दिया है वो पार्टीशन में से जो भी जगह बचेगी, हाँ, अगर वो साइज में नहीं है, जैसे यहाँ पे देखा है 8M का 8M में लोड हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मगर 8M मेरे प्रोसेस का साइज 5M है और वो 8M में लोड हो गया है, तो 3M क्या हो जाएगा? 3M इज अ वेस्टेज ऑफ अ स्पेस. तो इट इज सफरिंग फ्रॉम अ द वेस्टेज ऑफ अ मेमोरी. So when it is a suffering from the wastage of a memory, it is going to say to be a problem of the fragmentation. Problem of the fragmentation. So we try to identify the problem of a fragmentation. So in fixed partition, what is going to be happen? In fixed partition क्या हो जाएगा? Okay, so in fixed partition, any process whose size is less than or equal to the partition size can be loaded into the partition. जो भी प्रोसेस होगा उसका साइज लेस देन और इक्वल टू द साइज ऑफ पार्टीशन रहेगा, उसमें वो प्रोसेस लोड होगा. इफ ऑल पार्टीशंस आर ऑक्युपाइड देन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन स्वैप अ प्रोसेस आउट ऑफ अ पार्टीशन. हमने जैसे स्वैपिंग देखा था. सो द सम प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द क्राइटेरिया that is decided by the operating system. Some process will swap out and the new process is going to swap it. A program may be too large to fit in a partition. ओके, सो अगर प्रोग्राम आपका जैसे मैंने कहा है कि 9M का प्रोग्राम है तो वो इक्वल साइज पार्टीशन में 9M का प्रोग्राम तो लोड होता ही नहीं था. हाँ, ओके, सो प्रोग्रामर मस्ट देन डिजाइन द प्रोग्राम विथ ओवरलेस. यानी ओवरलेस क्या करेगा आपको? अभी मेरा 8M का मैंने पार्टीशन बताया था.
और मेरा प्रोग्राम कितना है 9M का है, तो एट अ टाइम मैं कितना ला सकता हूँ 9M में से? ओनली 8M दैट आई कैन। मैं यहाँ पे M बोल रहा हूँ तो MB हो गया प्रोग्राम साइज। हाँ, तो 8 MB का ला सकता हूँ। तो एक वाला MB मेरा कहाँ पे रहेगा? एक वाला मेरा MB ओवरलेस पे रहेगा। ओवरलेस पे रहेगा बोलो तो क्या आ जाएगा? वो हार्ड डिस्क का जो स्पेस है वो हार्ड डिस्क पे रहेगा। So I must design a mechanism so that only the 8 MB will be in memory, and whenever I require that remaining 1 MB, that remaining 1 MB I will brought into the memory when it is actually needed. जब उसकी जरूरत है तभी वो क्या हो जाएगा? मेमोरी में लाया जाएगा। So this is just like how the student are going to study. They will study only the things which is required according to the exam point of view. Exam आ गई है, memory में ला लो. Like this one. So when the module needed is not present, the user program must load the module into the program partition, overlaying whatever the programs or data are there. जो भी डेटा वहां पे होगा वो डेटा आप क्या कर लो? लोड कर। सो द मेन मेमोरी यूज इज द इनसफिशिएंट। इसका ड्रॉबैक क्या है कि आपका मेन मेमोरी का यूज जो है वो इनसफिशिएंट है। एनी प्रोग्राम नो मैटर हाउ स्मॉल, हाँ जैसे हमने 8 MB वाला देखा था, कितना भी स्मॉल हो तो फिक्स पार्टीशन इक्वल साइज में क्या हो जाएगा? 8M का प्रोग्राम रहेगा तो भी, सॉरी मेरा प्रोग्राम 2 MB का है। हाँ, मैं कौन सी बात कर रहा हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। मेरा प्रोग्राम कितने MB का है? और 2 MB का है। क्या हो जाएगा? इसमें से कौन सा भी जो फ्री है उसको अलोकेट किया जाएगा। हाँ, तो ये सपोज फॉर एग्जांपल ये वाला मेरा प्रोसेस P1 है। ये मेरा प्रोसेस P1 जो है जिसके साइज कितना है 2 MB है, कहाँ पे अलोकेट हो गया है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे अलोकेट हो गया है। मगर इसका साइज तो फिक्स है, इसका साइज मैं चेंज नहीं करता हूँ डायनामिकली। तो इसमें से मुझे कितना फ्री स्पेस रहेगा? हाँ, फ्री स्पेस बोलते हैं वेस्टेज स्पेस। वेस्टेज स्पेस कितना रहेगा मेरा यहाँ पे? माई वेस्टेज पेज इज ऑफ 6 MB। हाँ, सिमिलर टाइप ऑफ थिंग दैट वी कैन अप्लीकेबल हियर आल्सो। तो मेरा वेस्टेज स्पेस कितना है? 6 MB। कैन आई अलोकेट दैट 6 MB टू अदर प्रोसेस? नो, आई कैन नॉट अलोकेट। मैं वो 6 MB किसी और प्रोसेस को अलोकेट नहीं कर सकता। So that problem is called as the internal fragmentation. So what we have, the fixed partition method suffer from the problem that is called as the internal fragmentation. Unequal size partition, can it suffer from the internal fragmentation? Yes, but these problems but then still remain. वो problem रहेगा ही रहेगा। रहेगा ही रहेगा बोले तो क्या हो जाएगा? जैसे हमने यहाँ पे देखा, अभी मेरे पास जो प्रोग्राम है वो 5 MB का है। मेरा प्रोसेस जो है उसको कितना MB चाहिए? 5 MB। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस वन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। 5 MB का है मेरा प्रोसेस। P3 जो है वो 5 MB का है। तो मुझे ये 5 MB का प्रोसेस जो है वो कहाँ पे चला जाएगा? मेरा ये 5 MB का प्रोसेस है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चला गया। तो यहाँ पे वेस्टेज ऑफ स्पेस नहीं है क्या? यहाँ पे वेस्टेज ऑफ स्पेस है। कितना वेस्टेज ऑफ स्पेस है? 1 MB का वेस्टेज ऑफ स्पेस है। Either your fixed partition mechanism with equal size or unequal size, they are suffer from the fragmentation, and that fragmentation is called as the internal fragmentation. यानी आपके पास क्या है? मेमोरी है मगर उसको आप यूज कर सकते हो क्या? अगर उसका आप यूज नहीं कर सकते हो तो उसको कौन सा फ्रैगमेंटेशन बोलेंगे? इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो है उसमें से मैं एलोकेट कर रहा हूँ। ओके, सो इट सफर फ्रॉम व्हाट? इट सफर फ्रॉम द इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। सो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है मेरे पास? मेरे पास इसमें सॉल्यूशन जो है तो इन प्लेस ऑफ हैविंग अ फिक्स पार्टीशन आई मे हैव द वेरिएबल पार्टीशन। हाँ, equal size partition was used earlier. IBM OS with multi-programming with fixed number of tasks. IBM OS now no is going to use it. This is absolute nowadays. But still, at some companies, these are going to be in use. Okay, so the equal size partition, if there is an available partition, a process can be loaded into that partition. Because all the partitions are of equal size, it does not matter which partition is going to be used. कोई भी partition use कर सकते हैं, जो भी पहला उसको free मिलेगा. If all partitions are occupied by a block process, choose one process to swap out to make the room for the new process. Swap out करना है, swap in करना है. तो unequal size के लिए क्या रहेगा मेरे पास? हर एक partition के लिए एक queue रहेगा. So for unequal size partition, use of a multiple queues. Equal size के लिए मेरे पास एक ही क्यू रहेगा, मगर अनइक्वल के लिए मेरे पास क्या रहेंगे? मल्टीपल क्यू रहेंगे। यानी हर एक पार्टीशन के लिए मेरे पास एक क्यू होगा। जैसे हमने देखा था वहां पे 2 MB का पार्टीशन है, 2 MB के लिए एक क्यू।
So this queue might be for 4 MB. This queue might be for 6 MB. This queue might be for 8 MB. This queue might be for 12 MB. This queue might be for, okay, हमारे पास 8 के दो थे. Okay, this queue might be for 8 MB. This is for 12 MB. This is for 16 MB. So assign each process to the smallest partition within which it will fit. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हमने कहा था कि 5 MB वाला मेरा प्रोसेस P3 कितना वाला है, मेरा प्रोसेस P3 को कितना साइज चाहिए, 5 MB चाहिए. तो क्या सर्च करेंगे हम, we will try to find out a queue whose size is greater than or equal to the 5 MB. तो पहला वाला जो है वो 2 MB वाला है, ये नहीं होगा. दूसरा वाला जो है 4 MB वाला है. तीसरा वाला जो है 6 MB वाला है. 6 MB साइज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द 5 MB. तो ये आपका प्रोसेस P3 कहाँ कौन से क्यू पे जाएगा, 6 MB वाले क्यू पे जाएगा. ये क्यू फॉर द ईच पार्टीशन साइज. अगर मेरे पास 7 पार्टीशन है तो मेरे पास 7 क्यू है. मेरे पास कितने क्यू है, 7 क्यू है. Might be possible for this 2 partitions we may are going to use a 1 queue. Depends. So it tries to minimize the internal fragmentation. Okay, but there might be a problem. Some queues will be empty if no process within a size of that particular range is present. अगर मेरे सिस्टम में कोई भी प्रोसेस 2 MB से कम नहीं है, what is going to happen if no process is less than 2 MB. मेरा कोई भी प्रोसेस 2 MB का नहीं है, मेरा प्रोसेस जो है तो 2 MB के आगे का ही है, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, मेरा 2 MB वाला पार्टीशन क्या रहेगा, एम्प्टी रह जाएगा. ओके, मेरा 2 MB वाला पार्टीशन क्या रह जाएगा, एम्प्टी रह जाएगा. तो दैट इज द प्रॉब्लम दैट वी हैव अगेन. तो हम जो है स्टार्टिंग से ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं वो देख रहे हैं. अभी तो कोई भी यूज नहीं करता है. नहीं तो बोलोगे सर अभी केस में कौन यूज कर रहा है, अभी केस में इसमें से कोई भी यूज नहीं हो रहा है. Okay, so placement partition use of a single queue. When it's time to load a process into a memory, main memory, the smallest available partition that will hold the process is selected. It will increase the level of multiprogramming at expenses of internal fragmentation. In place of having a different queue, what we are going to have, we can have the only one queue. When it's time to load a process into the main memory, the smallest available partition that will hold the process is selected. यानी जैसे हमने पहले देखा था वैसे ही है. तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये हम यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो मेरे पास 5 MB का प्रोसेस है. मेरा प्रोसेस P3 कितने MB का है, 5 MB का है. सो व्हेन इट टाइम्स टू लोड, अभी मेरे P3 को मेमोरी में लोड करना है. स्मॉलेस्ट अवेलेबल पार्टीशन दैट विल होल्ड द प्रोसेस. अभी ये स्मॉलेस्ट अवेलेबल पार्टीशन बोले तो मेरे पास पार्टीशन कौन कौन से अवेलेबल है, मेरे पास पार्टीशन जो अवेलेबल है दैट इज 6 MB का भी है, 8 MB का भी है, 12 MB का भी है और 16 MB का भी. ये चारों में लोड हो सकता है, ये चारों में लोड हो सकता है. मगर ये चारों में अगर मैंने उसमें से मैंने सिलेक्ट किया, जो सिलेक्ट किया वो 16 MB वाला सिलेक्ट किया, तो क्या हो जाएगा, वहां पे मेरा नियर अबाउट 11 MB का इंटरनल फ्रैगमेंटेशन रहे. ओके, दैट्स व्हाई व्हाट इज कॉल्ड द स्मॉलेस्ट अवेलेबल पार्टीशन. अगर मेरे पास 6 MB वाला पार्टीशन अवेलेबल है तो 6 MB में एलोकेट करो. मगर मेरे पास अगर 6 MB वाला पार्टीशन अवेलेबल नहीं, तो क्या प्रोसेस को वेट करना चाहिए कि 8 MB में एलोकेट करना चाहिए. मेरे पास अभी प्रोसेस आया है P3 जिसको 5 MB का स्पेस चाहिए मेमोरी में, मगर 5 MB का स्पेस जो है स्मॉलेस्ट अवेलेबल पार्टीशन जो 6 MB था, 6 MB इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय सम अदर प्रोसेस. तो अभी मेरे प्रोसेस ने वेट करना चाहिए कि 8 MB वाला अलोकेट करना चाहिए. इट डजंट वेट, इट विल अलोकेट फॉर द 8 MB. तो मेरा 5 MB किधर अलोकेट हो जाएगा, मेरा 5 MB जो है वो 8 MB में अलोकेट हो जाएगा. That's the meaning of this sentence. When it's time to load a process into the main memory, the smallest available partition. ये मेरे पास सब अवेलेबल है, मगर उसमें से स्मॉलेस्ट वाला कौन सा लोगे अभी, 8 MB वाला, क्योंकि 6 MB वाला अवेलेबल नहीं है. It increases the level of multiprogramming at the expense of internal fragmentation. Means what now? मल्टीप्रोग्रामिंग तो इंक्रीज हो गया. 5 MB वाला प्रोसेस अभी मैंने ऑक्यूपाइड कर लिया है मेन मेमोरी में, मगर अगर वो 6 MB में डालते थे तो इंटरनल फ्रैगमेंटेशन मेरा कितना था, अगर 6 MB में डालते थे
तो 6 MB में डालते तो इंटरनल फ्रैगमेंटेशन मेरा जो था, वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस जो था वो 1 MB का था। मगर 8 MB में डाला, इसकी वजह से उसमें मेरा स्पेस कितना वेस्टेज हो गया है? हाँ, वेस्टेज ऑफ स्पेस कितना हो गया है? 3 MB हो गया। हाँ, कितना MB का हो गया है? 3 MB का हो गया है। दैट्स व्हाई इट सेज दैट, हाँ, इसलिए उसने क्या कहा है कि अगर हम ये वाला स्कीम स्मॉलेस्ट अवेलेबल पार्टीशन करते हैं तो मेरे को एडवांटेज क्या मिलेगा? इट विल इंक्रीजेस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, बट एट द सेम टाइम आई मे suffer from the some expenses, and expenses in what term? The expenses in terms of a internal fragmentation. Expenses in terms of what? Expenses in terms of a internal fragmentation. Okay, so what we have, the फिक्स पार्टीशन में क्या हो जाएगा? फिक्स पार्टीशन इजी है, मगर उसके साथ ही इट इज सफर फ्रॉम द इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। ओके, तो अगर मेरे पास इंटरनल फ्रैगमेंटेशन से सफर हो रहा है तो मुझे क्या